नमस्कार साथियों। आ, मैं अभी एक छोटा सा एक्सप्लेन करूँगा कि वेव पैटर्न्स ऐसे कैसे आप उसे उसके ऊपर रिलायबिलिटी कैसे कर सकते हो और वो क्या है। तो और उसकी जो आर एन एलेट ने जो इनोवेटिव डिटेलिंग की है। इनोवेटिव डिटेलिंग मतलब उसने डिटेलिंग किया है चीज़ को। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि वेव थ्योरी एक्चुअली ये अकेला नहीं था। इससे पहले होनेडा, आई थिंक होनेडा समवेयर इन 1840, वो जो राइस ट्रेडर्स है वो आज भी दे आर बिलेनियर्स। वो आज भी जापान में उनका फैमिली को रिचेस्ट फैमिली माना जाता है। अब होनेडा जो जापान में जो पहले क्या होता था मैं आपको बताता हूँ। जो जापान में पहले एक राइस बैग का प्राइस का डेफिनेशन करने के लिए छोटे छोटे ब्रिक्स बनाए थे उन्होंने, पत्थर के, आई मीन सॉरी लकड़े के। उस ब्रिक्स में कलर के साथ वो लोग आइडेंटिफाई करते थे कि ये 100 बैग्स का प्राइस, 10 बैग्स का प्राइस और ईच बैग का प्राइस। वो ब्रिक से, फ्रॉम दैट ब्रिक they went to know that they found out when number of bricks are stacked, very small bricks, hardly आपको 10 का एक छोटा ब्रिक रहेगा कलर्ड वाला। So when they stacked the bricks they came to know that it looks like in a wave. So Japanese people are quite intelligent because they always refer with the nature. So then he referred it as an waves. It looks like a waves of the ocean. So I think from 1840 it took a certain time to reach to US, and in 1892 I think 1892 94 or 94 I think Mr. Dow, जो एडवर्ड डाउ, आई थिंक एडवर्ड डाउ, ही his name was Edward Dow, Charles Dow, his name was Charles Dow. He died in 1894. But before his death he somehow found out about the Honeda's method and he tried to apply it on the equities in the early 1890s. And within a short period of 2 or 3 years he could able to come to a conclusion that price moves in waves and price moves in उन्होंने उसका उनका ये था कि प्राइस मूव्स इन वेव्स। ठीक है, ये चार्ल्स डाउ का मेथड था। बट आर एन एलियट ने क्या किया, आई थिंक चार्ल्स डाउ डाइड इन 1894 और 95। When R.N. Elliot came, he took up Charles Daw's work and he started studying the charts because of his illness or something, a long-standing illness he had acquired due to some military operation. R.N. Elliot ने क्या बोला, ही इज ब्रिलियंट। उसने क्या बोला कि अगर मार्केट एक ज़ीरो पॉइंट से ऊपर जाती है और फिर वापस नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, it is a Charles Dawes method. So market basically it is in the sideways. तो आर एन एलियट का वोकल एडवोकेटिंग क्या था कि in order to progress the market has to make a move. ठीक है, so this is called a, he said this is a progression. And he also said the progression cannot be in the only one direction. It has to have a direction in the either direction. So in this progression, market when it moves in a progressive method, it creates certain ripples, certain waves. Those are repeating pattern and can be identified. मैं आपको एक
मैच्योर्ड फैक्ट बता रहा हूँ. Do repeating pattern gives a very picture perfect? No, they don't give a picture perfect. So these are the repeating pattern. तो इस रिपीटिंग पैटर्न के अंदर आर.एन. एलियट ने फिर उसे स्टडी किया. आई थिंक ही स्टडीड फॉर नियरली 13 और 14 ईयर्स. सो 14 साल डेली. सी, इफ आई गिव यू एन ग्राफ पेपर, pencil, graph paper and scale, I ask you to draw a chart every single day of Dow 30 का जो 30 चार्ट डेली पे आप इंट्राडे का ड्रॉ कीजिए. मैं जब बोलूँगा you will cry, but he was doing it. डाउ जो इंडस्ट्रियल जो है उसका 30 स्टॉक का वो एवरीडे ड्रॉ करता था. एवरी 1 आवर स्केल का जो था वो ड्रॉ करता था. एंड एवरी सिंगल डे ही यूज टू ड्रॉ फॉर दिस 30 चार्ट्स. 1 आवर के बाद वो डेली का चार्ट ड्रॉ करता था, 30 चार्ट्स डेली. सो व्हाट हैपेंड इन व्हेन ही वाज ड्राइंग दोस चार्ट्स, 1 आवर का ही उतना डेली चार्ट करता था वो, और उसके बाद जो डेली का चार्टिंग है उसमें सिर्फ ऐड करता था. ठीक है, ही यूज टू ऐड द डॉट्स, कनेक्ट द डॉट्स. He did it for 15 years. If I ask you to practice every single day for 30 days, you won't practice even for 3 days. But he did it for 15 years. In that 15 years, he could really see a pattern that are repeating itself, which meets around 73% to 100%. Sometimes they are 100%. In this, R.N. Elliot basically believed that people behave in the same manner, in a very repetitive manner. So the errors are also in a repetition. Success is also in a repetition. Conflict is also in a repetition. तो उसका मतलब क्या था कि जो भी इंसान करता है वो रिपीटिंग करता रहता है, whether with the awareness of repetition or unknowingly. मेरा बात को सही तरीके से समझिए. अगर आपको सक्सेस होना है स्टॉक मार्केट में, दिस इज अ वेरी ट्रू फैक्ट्स आई एम एक्सप्लेनिंग यू. अच्छा, इसके बाद उसने कुछ स्टोरी लिखा. हाँ भाई, ये इट हैपन्स एंड इट इज ट्रू. आई डोंट से नो फॉर इट. बट व्हेन आर.एन. एलियट वाज राइटिंग दीज राइटिंग्स इन अर्ली 1920, which chart was being used in the 1920? There was no candlestick chart up to 1976. Now you come to a conclusion. There was no bar chart. There was no bar chart. There was an anchor chart. Okay, there was an anchor charts. So previous symbol was an anchor, but in the place of anchor, people started shifting to dots. One is a small dot and there is a circle dot. I have seen it by hand. Don't if you have not seen the circle dot, so don't say that you have not seen it and you don't know about it. No, circle dot represents a daily. Single dot represents hourly or 2 hourly, less than daily. Okay, and dot with the square represents weekly. Okay, this he was using it. If I go, और आप लोग अब किसी भी आर.एन. एलियट के जो इतने वक्त है, अंधे वक्त है या वक्त है, जो भी बताना बताइए आप, उनको जाके पूछिए सर्कल डॉट क्या है, स्क्वायर डॉट क्या है, उनको कुछ मालूम नहीं है. वो डॉट रहता था, उसके ऊपर सर्कल डालते थे, वो जो डेली का रिपोर्ट में बस एक सिंबॉलिक है. इट्स जस्ट अ सिंबल. सो ही वाज यूजिंग ए क्लोजिंग चार्ट एंड ही वाज आल्सो यूजिंग वीकली चार्ट्स. एंकर चार्ट्स भी थे.
he knew the anchor was very famous in during the early 1920. तो उसके बाद वो सिस्टम आ गया और लोगों में विश्वास आया इसके राइटिंग्स पे. ही डाइड इन 1941. RN Elliot died in 1941, but within that he created an history and his work was taken by. उसके बाद उसके काम को बहुत से लोगों ने आगे लेके गया और उन्होंने उसका नाम रोशन किया मतलब RN Elliot didn't had any kids. उसका कोई संतान नहीं था. देर से शादी हुआ, संतान नहीं था. और उसकी पत्नी थी जब तक जो थी वो, उसके बाद वो भी गुजर गई. तो RN Elliot का कोई इनहेरिटेड किसी को जाना नहीं था. तो उसका काम को पिकअप किया हैमिल्टन बोल्टन ने. रॉबर्ट रिहा हैज़ वर्कड एक्सटेंसिवली ऑन डाउ जोन्स. ठीक है, चार्ल्स डाउ का काम रॉबर्ट रिहा ने बहुत काम किया था और RN Elliot का फ़ैन बन गया वो उसके बाद. तो हैमिल्टन बोल्टन ने काम किया है. उसके बाद आता है रॉबर्ट प्रैक्टर जूनियर. वो रॉबर्ट प्रैक्टर आता है, उसके बाद फिर रॉबर्ट प्रैक्टर जूनियर आता है, उसका जूनियर है जो अभी आप ही इज स्टिल अलाइव. तो ये लोग उसी के नाम को आगे लेके जा रहे हैं. लेकिन बट मैं बिहेवियर साइंस के बारे में बात करूं, हाउ द स्टॉक बिहेव्स, दे बिहेव डिफरेंटली. हाँ, RN Elliot जब देख रहा था दैट टाइम देर वेर नो कंप्यूटर्स. नाउ यू हैव अ कंप्यूटर्स. मैं अगर समझो कि मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे आपको क्या मालूम पड़ेगा. मैं I'll just ask you what you will come to know here. You will not come to know anything here. What you will come to know here, you will not come to know anything. Let's see. मैं इसे निकालता हूँ और मैं इसको 1 second. I'll turn this into a line chart. चलो भाई लाइन चार्ट बनाइए. अभी आप बताइए इसमें आपको क्या दिखाई देता है. दिस इज़ 535. बाद में ये x होके फिर 535 आ सकती है ना नीचे. आरती एंटरप्राइजेस कैन कम, आरती इंडस्ट्रीज कैन कम बिलो. यस, इट कैन कम बिलो, इसमें कोई शक नहीं है, इट कैन कम बिलो. बट उसके 1974-75 के बाद जो प्रोग्रामिंग का डेवलपमेंट हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में, उन लोगों ने इसका मेथड को डिकोड करना शुरू कर दिया. देन दे वेंट विद द लॉगरिथमिक आल्सो. नाउ आई विल शो यू समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. आई विल गो विद द लॉगरिथमिक स्केल एंड आई विल गो विद द बार चार्ट. जब लॉग चार्ट में जाते हो, लॉगरिथमिक चार्ट में जाते हो, देन you started getting a structures, a clear visible structure. Now I am telling you this is a clear visible structure. It doesn't mean that आपको this is the final structure है करके ये आपको ये explain नहीं करता है. It is a clear visible structure. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि it can make one more law. Yes, it can make one more law. आरती एंटरप्राइजेस कैन मेक वन मोर लॉ. यहाँ पे देखिए आप, आई यूज दिस A, B and C. इट इज़ ए फ्लैट पैटर्न. ठीक है, RN Elliot ने उसको बताया है फ्लैट पैटर्न के बारे में. इट्स अ फ्लैट पैटर्न. लेकिन बट ओनली आई कैन सी दिस व्हेन आई गो विथ अ लॉग स्केल. मैं जब लॉग स्केल में जाता हूँ तभी मेरे को यह समझ में आती है. मैं विदाउट लॉग स्केल तो मैं कर ही नहीं सकता. Can you understand this? Yes. Because of programming and coding, other things, we did this. I mean, वो हम जानते हैं. इसके साथ साथ how much the percentage it can come below, that is very very important. कि भाई ये कितना करेक्शन में आएगा. हम लोग जानते हैं ये कितना करेक्शन में आएगा. It is 1025 points from this low. Although it is in the log scale, points cannot be changed. 1025 points. 1025 points में 38 आप 23% करो, कितना होता है? 230 points. तो यहाँ से आपको 230 points नीचे चाहिए. But how much you are getting here?
589, यहाँ से आप 23 नहीं, अभी क्या बोलते हो, 32, सॉरी 33% जो फिबोनाची का रिलेशनशिप है उसको कीजिए, then you still get 33.8%, then you get this 589 points. So the correction is ended. But remember, I am not using a Fibonacci. Why I am not using a Fibonacci? I'll show you that. Ek minute, I'm sorry. Why I am not using a Fibonacci? On log scale, the actual Fibonacci tool doesn't work. On log scale, the actual Fibonacci tool doesn't work. Fibonacci tool doesn't work on the log scale. If you see this, it is completely, it shows 61.5, 78% ये सब दिखाता है. So the actual Fibonacci scale doesn't work on the log scale. ठीक है, आपको 38.2% का जो कैलकुलेट करेंगे, so it comes 589 points. Yes, the correction has ended here. If the correction has to exceed, can it exceed? It is possible to exceed by another 100 points. क्या ये नीचे आ सकती है? हाँ, आ सकती है. I'm not saying no. Yes, it can come. But we consider this as a rally. तो इसके बाद हमारा ऊपर कितना जाएगा? Again, how much you can expect from this? From this, you expect exactly double the price. Double the price in the sense 589 it came below. Okay, so add 589 for this, then add another 300 or 400 points for this. Around 1000 points it is going. Okay, so this is how, once the computerization start taking place, this is how the things started becoming changing. Now if you see this, you won't understand, you won't even understand this. Even if you go to weekly, you won't even understand this. तो आपको समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये जो वक्त है आर.एन. एलियट के, मैं वैसा किया, मैं ऐसा किया, मेरा इतना ये है, मेरा उतना ये है, ये सब देखिए, I don't want to blame them, but they have a very negligible या उनको जो नॉलेज मिला है वो नॉलेज में स्ट्रेंथ नहीं है, उतना खास स्ट्रेंथ नहीं है. दैट इज़ द रीज़न यू हैव टू हैव ए सर्टन मेथड टू अंडरस्टैंड इट. आपके पास एक मेथड होना चाहिए, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए. ये है लिक्विड स्टॉक. अगर आप इसी लिक्विड स्टॉक के हिसाब से जाएंगे, मैं आपको नॉन लिक्विड स्टॉक दिखा देता हूँ. बॉन्ड्स में चलते हैं, आपको ये आंध्रा पेट्रोलियम, ये नॉन लिक्विड स्टॉक है, इसमें लिक्विडिटी बहुत कम है. सो ये हमेशा गैप अप, गैप डाउन, गैप, ये देखो इतना वोल्टिलिटी है इसमें. वी आर ऑन वीकली, स्टिल दिस इज द वोल्टिलिटी, इट इज़ सो हाई. ठीक है, दिस इज नॉन लिक्विड. हियर इट डजेंट वर्क. Here, R.N. Elliott theory doesn't work because of the computerization. Because of the computerization, computers are taking over the order placement. Order placement का जो है उस सिस्टम में, कंप्यूटर में काम बराबर नहीं करता है. आप जो लिक्विड वाला सिस्टम के ऊपर ही आप अगर ये अप्लाई करेंगे, इस पर भी ये नॉन लिक्विड वाला यहाँ पे सप्रेस हो जाएगा. एक्सक्यूज मी, यहाँ पे सप्रेस हो जाएगा. तो काम नहीं करता है. काम करता है, ऐसा नहीं है काम नहीं करता है, लेकिन विजिबिलिटी नहीं आती है. यू विल नॉट गेट द विजिबिलिटी. बट हाउ टू आइडेंटिफाई विदाउट हैविंग ट्रबल, इवन आफ्टर देयर इज अ लो लिक्विडिटी इन द स्टॉक, इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट कम्स विद द मैच्योरिटी माई फ्रेंड्स. मैच्योरिटी आपके पास जितनी रहती है, जितना आप एक सीनियर मोस्ट, देखिए शुरुआत में मैं भी आपके जैसा ही था, ठीक है, लेकिन मेरा 18 to 20 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है उसमें का पहले का 2-3 साल निकाल दीजिए. आई वॉज लाइक इंडिकेटर ट्रेडर. हवा इंडिकेटर लगा तो मैं लग जा, पैसा ले ले. बट मैच्योरिटी कम्स with experience, understanding and all these things. Anyway, this I wanted to explain how wave theory works.
मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया, आपके ऊपर है कि आप सीखेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, इट इज़ अप टू यू। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।